Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's is body buffer system. Now, first of all, little bit introduction to acid-base balance. Body has the capability of the maintenance of acid and base. As you know that acid and base can cause the effect to the change in pH. So, body's main function is the maintenance of the stable pH. It is also called as isohydria. Now, there are different terminologies like isohydria, which is the maintenance of the pH, isovolemia, जो कि आप पीछे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म में देख चुके हैं, स्टेबिलिटी ऑफ वॉल्यूम, isosmolarity, stability of tonicity of the body, and isoinia, stability of ion composition. Now the buffer mainly work on the maintenance of uh, stable pH of the body. Proton concentration and pH. You are well aware of the pH and proton definition in the first year. So we will discuss here a little bit about this. As you know that pH is the negative log of hydrogen ion concentration. So the pH of the blood is 7.4 to 7.3 to 7.4, and if you can consider from this, pH above 7.44 is more alkaline in nature, and it will cause the body in alkalemic state, and pH lower than 7.36 is acidic condition, and it will cause the acidemia. Though these two conditions are very serious if they are present constantly in the body, and they can cause serious consequences. For example, आप पढ़ चुके हैं प्रोटीन में भी और एंजाइम्स में भी कि पीएच और टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो अगर पीएच की डेविएशन होगी, बॉडी अल्कलाइन कंडीशन में जाएगी या एसिडिक कंडीशन में जाएगी, तो सबसे पहले ये बॉडी के प्रोटीन स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है. तो एंजाइम की फंक्शनिंग इफेक्ट होगी, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इफेक्ट करेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट pH effect in acidic or basic condition can seriously change the distribution of the electrolytes in the body. Now, electrolytes are the main minerals in the body which perform huge amount of functions in the body. So if there is a disturbance in the distribution of the electrolyte, then body can go into the disease status. Now, sources of the acid in the body. Sources of the acid in the body is mainly from the metabolism of the body. अब आप protein metabolism, carbohydrate metabolism या lipid metabolism से आइडिया लगा सकते हैं कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म के थ्रू कौन कौन से एसिड प्रोड्यूस होते हैं. एंड सोर्सेज ऑफ द बेस इज मेनली फ्रॉम द न्यूट्रिशन. ये जो एसिड और बेस हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं या बॉडी में आते हैं, दे मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, because if they stay in our body, then they can change or affect the pH of the body. So body has two methods to maintain the pH. Either these acid and bases are metabolically converted into some other products, कि ये किसी ऐसी प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं जो कि बॉडी की पीएच को इफ़ेक्ट नहीं कर सकती. जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है, लैक्टिक एसिड जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ईदर दे आर इन दिस कंडीशन और ईदर दे आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी. So we can say that body maintains the acid and base by three types of reaction: proton productive,
proton-consumptive and proton-neutral, because proton is the main constituent that affect the pH of the body. It can either cause acidity or it can either affect the basicity of the body. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन प्रोडक्टिव रिएक्शन, अब नाम से ही जाहिर है कि जिसमें हमारे पास प्रोटॉन की प्रोडक्शन हो रही है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द बॉडी दैट कैन प्रोड्यूस प्रोटॉन. आप पढ़ चुके हैं बहुत सारे रिएक्शन इसमें, जैसे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में प्रोटॉन प्रोडक्शन है, कीटोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज फ्रॉम द फैटी एसिड. उसके साथ एक प्रोटॉन की जनरेशन भी होगी. लिपोलाइसिस दैट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ द लिपिड्स, एंड फ्रॉम लिपोलाइसिस ऑल्सो देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन. एंड यूरियाजेनेसिस जिसमें यूरिया की प्रोडक्शन होती है और उसके साथ प्रोटॉन की भी प्रोडक्शन होती है. देन प्रोटॉन कंजप्टिव रिएक्शन जिसमें प्रोटॉन यूटिलाइज हो जाते हैं. ग्लूकोनियोजेनेसिस that is lactate with proton is converted into glucose, and the neutral and dicarboxylic acid amino acid oxidation also consumes proton. And third one is the proton neutral reaction, in which there is complete neutrality of the proton in the body. The examples are complete glucose oxidation. जब ग्लूकोज की complete oxidation होती है तो आपको पता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट हो जाता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रल रिएक्शन कहलाएगा ये. देन लिपोजेनेसिस फ्रॉम ग्लूकोज के ग्लूकोज से लिपिड्स की सिंथेसिस, ये भी प्रोटॉन न्यूट्रल रिएक्शन कहलाएगा. अब जो एसिड हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. volatile acid, they are also called as respiratory acid, and non-volatile acid they are called as metabolic acid. वोलाटाइल एसिड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट एसिड है दैट इज़ कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये हमारी बॉडी में जनरेट होता है बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से H2CO3 जनरेट होगा. और नॉन वोलाटाइल एसिड्स में आगे फर्दर 2 क्लासेस हैं या 2 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स. नाउ these non-volatile acids, they are either metabolized or they are excreted mainly from the kidneys, and the examples are lactic acid, fatty acid, ketone bodies, and they are produced by the metabolism of lipids, carbohydrates and protein. Now these organic non-volatile acids are products of metabolism in normal conditions, and they are completely oxidized into carbon dioxide and water. So आप कह सकते हैं कि ये ओवरऑल प्रोटॉन बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, तो हम इनको प्रोटॉन न्यूट्रल रिएक्शन में कंसिडर करते हैं. देन नॉन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल एसिड्स आर H2SO4, which is produced from the oxidation of sulfhydryl groups. अब जो sulfhydryl groups हैं, they are also the parts of amino acid like cysteine, methionine, or H3PO4 phosphoric acid, which is produced by the hydrolysis of phosphoprotein, phospholipids and nucleic acid. ये जो इनऑर्गेनिक नॉन वोलाटाइल एसिड्स होते हैं ये मेटाबलाइज नहीं होते, बल्कि ये हमारी बॉडी में वाया किडनी फ्रॉम यूरिन एक्सक्रीट होते हैं प्रीडोमिनेंटली. Now there are 3 main systems which are responsible for the maintenance of acid base balance. कि बॉडी जो है वो हर मुमकिन तरीके से पीएच की चेंज को मेंटेन करने की या रेजिस्ट करने की कोशिश करती है. तो उसके लिए बॉडी 3 मैकेनिज़म्स को जनरेट करती है जो कि टर्न बाय टर्न अपनी फंक्शनिंग करते हैं. उसमें सबसे पहले है केमिकल बफरिंग सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देन किडनीज. नाउ केमिकल बफरिंग सिस्टम मोस्ट हाईली वर्किंग सिस्टम जो कि बॉडी में फ़ौरन से काम करता है इमीडिएटली. आप इसे एक्यूट रेगुलेशन भी बोल सकते हैं कि जैसे ही बॉडी की पीएच चेंज होगी तो बॉडी के बफर्स जो हैं वो पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे.
बट ये शॉर्ट टर्म है, that is they can work in limited time period, and they try to deal with the pH deviation in common metabolism. then respiratory system है जो कि आफ्टर बफरिंग सिस्टम काम करता है, और 1 to 3 मिनट्स में बॉडी जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस को प्रोसीड करती है। अब ये जो रेस्पिरेशन सिस्टम है ये हमारी बॉडी में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करता है। डिपेंड करता है बॉडी की एसिडिक या बेसिक कंडीशन पे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी में रहना चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर जाना चाहिए। और देन है किडनीज, ये आप हमारा लास्ट सिस्टम है जो कि हर मुमकिन तरीके से एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और ये आवर टू डेज रिएक्ट कर सकता है। और जो हमारा किडनीज का बॉडीज़ का एसिड बेस बैलेंस है ये कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू काम करता है। देन बफर सिस्टम्स हैं। बफर की डेफिनेशन वही जो आप पीछे पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में भी कि दे आर गोइंग टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो मेनली हम कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है उसका जो चेंज आता है बॉडी में उसको बैलेंस करने के सिस्टम को हम बफर सिस्टम कहेंगे। अब जो बफर सिस्टम्स हैं ये हेंडरसन हैज़लबैक इक्वेशन के थ्रू काम करते हैं, और उसमें जो हमारे पास मेन थीम है वो है pH इज इक्वल टू पी के। जब बफर सिस्टम होगा तो वो हमारी आइसोइलेक्ट्रिक pH पे काम करेगा, और आइसोइलेक्ट्रिक pH क्या है, जब pH pK के बराबर हो जाती है। अब जो बफर है इसके मेन फंक्शनिंग क्या है कि ये बॉडी की pH को रेजिस्ट करेगा चेंज को फ्रॉम द एडिशन ऑफ एसिड और बेस। अब या ये बॉडी के प्रोटॉन को मैनेज करेगा या हाइड्रोक्सिल आयन को मैनेज करेगा। उसके बाद ये है कि ये हमारी बॉडी के सेल और ब्लड की प्रॉपर फंक्शनिंग को मेंटेन करेगा, और इस बात को इंश्योर करेगा कि ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 के क्लोज बॉडी उसको मेंटेन करे। और अब बॉडी जो है पीएच को चेंज ना करे ताकि हमारा ब्लड सेलुलर प्रोसेस या अपटेक ऑफ ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन रहे। नाउ दिस इज़ द बफर सिस्टम इन बॉडी फ्लूइड कि या तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में काम करेंगे, डिपेंड करता है कि बॉडी के कौन से कंपार्टमेंट में पीएच इफेक्ट हो रही है। इधर इट इज़ इंट्रासेलुलर फ्लूइड और इधर इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। In intracellular fluid there are two buffer system, phosphate buffer system and protein buffer system, and then in protein buffer system further there is elaboration of amino acid buffer system, hemoglobin buffer system जो कि RBCs में काम कर रहा है, और plasma protein buffer system जो कि प्लाज्मा में काम करेगा। And in extracellular fluid there are again two types of buffer system, protein buffer system and carbonic acid bicarbonate buffer system. Here is detail of the buffer कि कौन सा बफर बॉडी के किस कंपार्टमेंट में ज़्यादा इफेक्टिव है और उसका क्या काम है। लाइक बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है ये सबसे ज़्यादा जो है मेटाबॉलिक एसिड्स को बफर करेगा, और ब्लड में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बाइकार्बोनेट और हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम है, और हीमोग्लोबिन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनिक एसिड को बफर करेगी। उसके अलावा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रोटीन और फॉस्फेट सिग्निफिकेंट बफर सिस्टम के तौर पे काम करते हैं, और यूरिन में मेनली दो बफर सिस्टम्स हैं जिसमें फॉस्फेट है एंड अमोनिया है, जो कि मेनली प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को और अमोनिया की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। Now this is the percentage of the buffer systems which is present inside the body. Bicarbonate buffer system इसकी 35% buffering capacity है in plasma and 18% capacity है in erythrocytes. Hemoglobin buffer system, it has 35% buffering capacity in the erythrocyte. So आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बफर कहाँ पे
हाईली बफरिंग कैपेसिटी के साथ प्रेजेंट है. Now, first buffer system or the major buffer system is bicarbonate buffer system. ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का बफर सिस्टम है और इस बफर सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, H2CO3 एज ए वीक एसिड एंड HCO3 एज इट्स कंजुगेट बेस और बाइकार्बोनेट. So, H2CO3 is mainly producing from the carbon dioxide एंड हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्रेजेंट करेंगे और नॉर्मल पीएच में जो बाइकार्बोनेट की और H2CO3 की या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन रेशो 20/1 है. Then this buffer system is called as open buffer system. क्योंकि ये हमारी बॉडी में मेनली दोनों कंपोनेंट्स को, बाइकार्बोनेट्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करता है और उनकी एक्टिविटी को चेंज कर सकता है. इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो मेनली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मेंटेन होती है, यानी कि बॉडी वेंटिलेशन के थ्रू PCO2 को मेंटेन करती है. और जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो किडनीज अल्टरनेट कर सकते हैं एंड लिवर. और ये जो बाइकार्बोनेट है ये सिंथेसाइज भी हो सकता है और बॉडी से एक्सक्रीट भी हो सकता है. अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडीज नीड कि अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और बॉडी को ये नहीं रिक्वायर तो फिर बॉडी से एक्सक्रीट करेगी, और अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो बॉडी इसको सिंथेसाइज करेगी. अब ये जो बफर है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम ये 5.1 से 7.1 रेंज में बेस्ट वर्किंग करता है, बट इट इज़ हाईली इफेक्टिव एट 7.4 pH. Then protein buffer system. Protein buffer system is intracellular buffer system mainly. Also it is extracellular, but highly it is working in intracellular fluid, and we can say that it is the most dependent buffer because protein की concentration की वजह से, और we can say it is the most powerful buffer system. And now this protein buffer system has its buffering capacity कि ये buffering का काम कहाँ से कर रहा है, अपने अमाइनो एसिड्स की वजह से. इसमें जो हमारे पास अमाइनो एसिड बफरिंग जोन रखते हैं या बफरिंग कैपेसिटी रखते हैं, उसमें हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट. एंड देन देयर इज अदर प्रोटीन बफर सिस्टम जो कि हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम है, और ये सबसे ज़्यादा हाई बफरिंग कैपेसिटी का बफर सिस्टम है. Now, hemoglobin buffer system has mainly present and working in erythrocytes, and आप कह सकते हैं कि ये हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम जो है ये बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के साथ मिल के बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मैनेज करता है. इसमें क्या है, वही जो चीज़ आपको पहले बताई है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ मेनली जनरेटिंग फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन नॉट ट्रेवल इनटू द ब्लड. तो इसको किसी ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट होना चाहिए जो कि ब्लड में इजीली आ सकता हो. तो ये CO2 जो है इट विल डिफ्यूज इनटू द एरिथ्रोसाइट्स, and in erythrocytes it can perform two function. Either it is bind to hemoglobin and form carbaminohemoglobin, or it reacts with water and it forms H2CO3, and then this H2CO3 is dissociated into bicarbonate and hydrogen ion. Now bicarbonate ion it can leave from the erythrocyte in exchange of chloride. अब फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं. और then the hydrogen which is produced from the carbonic acid it cannot come directly into the blood, because if it comes into the blood then it will get the pH of the blood in acidic value.
सो ये जो प्रोटॉन है इसको इस तरह से आना चाहिए कि ये हमारी ब्लड की पीएच को इफेक्ट ना करे। तो ये जो प्रोटॉन है ये मेनली हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और हम उस हीमोग्लोबिन को प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड देन दिस हीमोग्लोबिन कैरीज दिस प्रोटॉन एंड ट्रांसफर इट इनटू द लंग्स, जहाँ पे दोबारा से दिस प्रोटॉन and this HCO3 will again recombine and form H2CO3, and then this H2CO3 will be degraded into carbon dioxide and water, and then carbon dioxide is expelled from the lungs uh, via exhaling process. Then phosphate buffer system, this is major intracellular buffer system. Now you can see its pK value and its intracellular pH. Phosphate buffer system is only accounts for the 5% of the buffering capacity, but हम इसको इसलिए मेन बफर सिस्टम, मेजर बफर सिस्टम या इम्पोर्टेंट बफर सिस्टम कंसिडर करते हैं क्योंकि ये हमारा मेजर यूरिन बफर सिस्टम है। और इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एसिड कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ H2PO4 एंड बेस कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ HPO4 नेगेटिव। देन यूरिनरी बफर सिस्टम, पीछे आप पढ़ चुके हैं कि दो इम्पॉर्टेंट यूरिन बफर सिस्टम्स हैं, अमोनियम बफर सिस्टम एंड फॉस्फेट बफर सिस्टम। अमोनिया, it is it should be excreted from the body. So these buffer system are used to excrete excessive proton and ammonia which is generated in the body. अब ये अमोनिया जो है कहाँ से जनरेट होता है? दिस अमोनिया इज जनरेटेड इन द लिवर and this ammonia is generated from the glutamine. Glutaminase enzyme will react and it can cause glutamine to convert into glutamate and ammonia. अब जो ये अमोनिया है ये हमारे यूरिन में आएगा और वहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होके अमोनियम आयन बनाएगा और ये अमोनियम आयन जो है ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है। This is the physiologic urine pH from 4.4 to 8. Thank you so much for today's lecture. If you have any question regarding buffer system, then please let me know in the comment section.